So hello everyone, how are you? How are you all? I hope you all are fit and fine. So as you know, myself Paras Agrawal, and here I am starting with the chemistry for foundation, JE and NEET. So it is my first lecture for the foundation, and the topic that we will start with that is atomic structure. So I have started the chapter with full of the basics that completely you can easily make easily it will be understandable for you all. So no need to worry much about the foundation and JE advanced, and that will also help you a lot in the preparation of your board exams. So without wasting any time, without any introduction, we'll make the things clear and make the concept clear. So I request to all of you to watch the lecture properly. And along with that, please, it's a humble request to all of you to keep a pen and paper with you and make the notes. Thank you so much. So let's begin the lecture. I'm going to share my screen. So, my dear students, as we all know about the atomic structure, और हम लोगों ने 9th class में, if you all have remembered, we have discussed about the atomic structure and structure of atom. But there also what we have seen, उधर भी हमने देखा कि कई सारे phenomenons थे, और that was just a simple concept we can say, है ना? वो सिर्फ एक simple concept था atomic structure का. Now we will have the detailed description study of atomic structure. Because now we know, क्योंकि जो most accepted theory थी atomic theory, that you all know that was given by John Dalton in 1804, है ना? 1804 में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी. फॉर दैट टाइम इट वाज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, बिकॉज टिल दैट टाइम we don't know about the bifurcation of the atom or the subatomic particles of the atom. तो जब हमारे जो एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए हमें, that time the theory gets completely changed and make it as vast as possible, है ना? तो अब हम लोग जैसे डाल्टन्स ने कई सारे कॉन्सेप्ट दिए, क्या दिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स will not have the similar properties. ध्यान से सुनिएगा प्लीज. जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, they don't have similar properties. But after the discovery of isobars हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, because we have some identical elements, different elements, जिनमें कि हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, like isobars में elements are having similar properties and having the same mass also. ठीक है, उनने बोला सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज. टू सिमिलर एलिमेंट्स कैन नॉट हैव द सेम टू सिमिलर एलिमेंट्स कैन नॉट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मास नंबर. बट ये भी गलत हो गया. इफ वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, देयर विल बी आइसोटोपिक फॉर्म्स. सो आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. तो इधर इनकी थ्योरी गलत हो गई. फिर उसके बाद जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, वी आर टॉकिंग हियर इन दिस फर्स्ट लेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ओनली. तो जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, दैट चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीटली. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, एंड द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज discovery of electron. It is just discovery of electron. So आप लोगों ने 9th क्लास में वैसे discovery of electron पढ़ी है. So now we are with covering also. I have already told you here we will cover foundation, NEET, JE. So we will discuss now on that basis. So as you all know about the discovery of electron, that it is done by J.J. Thomson. और ऐसा नहीं है अकेले जे थॉमसन ने इसको किया, many scientists were working under him, but the main credit of the discovery goes to जे थॉमसन. ठीक है, अब जे थॉमसन की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने कैसे क्या किया अपनी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में. सो ही डिड अ एक्सपेरिमेंट that is known as CRT experiment or discharge tube experiment. It is known as CRT experiment,
or discharge tube experiment. It is C for cathode, R for ray, T for tube. Cathode ray tube experiment और simply हम लोग इसको discharge tube experiment भी बोल देते हैं. अब इन्होंने इसमें क्या किया, हीटो का discharge tube मैं बना देता हूं, but my drawing is not so much good, but I am trying. So हीटो का discharge tube, okay, placed an evacuated pump. अब ये वैक्यूम पंप उसमें क्यों लगाया कि अगर इसमें कोई गैस है तो उस गैस का प्रेशर जो है वो रिड्यूस करके बाहर निकले. Here it is a negligible process, negligible pressure, but we can't say it as zero. हाँ, जीरो के लगभग लगभग था. जो प्रेशर यूज किया गया था that is 10 to the power -3 मिलीमीटर ऑफ Hg. इतना लो प्रेशर यूज किया गया था. ठीक है. और जो गैस यूज की गई थी दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसेस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. नाउ ही हैव कनेक्टेड द बोथ द ends of the tube with the high potential, means that is approximately equals to 1000 or more than that. Okay, 1000 volt से ज्यादा से कनेक्ट कर दिया. Here it is negative terminal, here it is positive terminal. Now here he have made negative, that is electron, means cathode, और इधर एनोड इसने यूज किया. अब इन्होंने क्या देखा, एक चीज इन्होंने और यूज की, जो एनोड साइड था, एट द साइड ऑफ द एनोड ही हैव पॉलिश्ड विद द फ्लोरोसेंस मटेरियल. नाउ व्हाट इज फ्लोरोसेंस, इट इज इंपॉर्टेंट और एग्जांपल भी पूछा जाता है फ्लोरोसेंस मटेरियल का. सो फ्लोरोसेंस मटेरियल होते हैं, हम लोग यूज भी करते हैं, हम लोग टेलीविजन में भी हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है. जनरली द एग्जांपल जिंक सल्फाइड. क्यों किया था, क्योंकि जो रेज हमारी जो निकली थी दे आर इनविजिबल रेज. अब इनविजिबल है तो जादू चल नहीं रहा है, कुछ मतलब ऐसे तो है नहीं कि हाँ हाँ निकल रही है, दिख नहीं रही. सो फॉर दैट जब इनविजिबल रेज हमारी फ्लोरोसेंस मटेरियल से टकराई तो क्या हुआ, एक शाइनी अपीयरेंस आ गया, जिसकी वजह से हमें पता लगा समथिंग इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. अगर कुछ हम लोग मटेरियल यूज नहीं करते, शाइनी मटेरियल यूज नहीं करते, देन वी आर अवेयर ऑफ दैट कि रेज आर जनरेटिंग. नो, कोई रेज जनरेट हो रही कैसे पता लगेगा, जब when the light strikes on the anode part where we have polished it by the fluorescence material. और मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है फ्लोरोसेंस मटेरियल का, दैट इज जिंक सल्फाइड. ठीक है, जिंक सल्फाइड मटेरियल को उन्होंने पॉलिश कर दिया. उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ रेज, इनविजिबल रेज आर ट्रेवलिंग, बट एज दे स्ट्राइक दे आर मेकिंग इट शाइनी, जिसकी वजह से हमें पता लग गया द कैथोड रेज आर. अभी हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं लगा, दैट वी विल डिस्कस, वो एक्सपेरिमेंट से आया था तो हमें पता लगा कैथोड रेज के बारे में. इट इज एज सिंपल एज दैट. A simple set of experiment of CRT experiment. There he has taken a discharge tube. Discharge tube में evacuation pump लगा दिया, evacuation pump जो कि pressure को maintain करेगा. Then he have connected the ends of the discharge tube by a high potential or high voltage that is more than 1000 of volt. और जैसे ही चार्ज ने ट्रेवल किया, अब मैंने अगर हाइड्रोजन की बात करी है, so for hydrogen you all know we have one proton and one electron. Now we will talk about the neutron. So hydrogen is only the element that has 0 neutron. Clear है? तो अब इसमें क्या हुआ, जब वो इलेक्ट्रॉन ने, हम क्या करेंगे जब चार्ज फ्लो होगा, चार्ज गैसेस, कुछ गैस तो यूज किए ना हाइड्रोजन की, वेरी नेग्लिजिबल गैस है, he has used in his experiment. तो अब उन गैसेस में क्या निकलेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से जैसे ही जो मतलब पोटेंशियल से टकराए, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो गैस से टकराएंगे, और गैस के इलेक्ट्रॉन्स फिर आयनाइज होंगे, निकलेंगे, और दे स्टार्ट ट्रेवलिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल. आई होप इट इज क्लियर. In the same, when he has used the helium, the same thing happened. Means इससे क्या conclusion निकला, that we will discuss in the experiment. तो अभी that's it for the discovery of electrons. Clear? It is just simple as that
कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है दैट डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैसेस। अगर हम गैस भी चेंज कर देते हैं देन ऑल्सो द रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड कुछ चेंज नहीं होगा। गैस का नेचर हम चेंज कर दें, हम इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल चेंज कर दें, एनीथिंग वी कैन चेंज बट द मूवमेंट और द डायरेक्शन विल बी रिमेन सेम। So that was the experiment that has been done by the J.J. Thomson. Now, coming to the forward, we will have the properties of cathode rays, or we can say properties of a rays. So we'll discuss about the properties of the cathode rays. Meanwhile, I'll ask one question from you. What is the reason to reduce the pressure less negligible? क्यों एक्सपेरिमेंट में प्रेशर को नेग्लिजिबल रखा बाय टेकिंग हाई पोटेंशियल? क्या उनके दिमाग में चल रहा था, क्या चल रहा था उनके दिमाग में जो उन्होंने प्रेशर को नेग्लिजिबल रखा? सो इफ यू नो द आंसर प्लीज ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट, आई विल वेट फॉर दैट. नाउ we'll discuss the properties one by one and I'll explain you all the properties. So एक थिंग तो आप लोगों ने कंक्लूड कर ली होगी कि आप लोगों को पता है चार्जेस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम अपोजिट टर्मिनल, मींस अनलाइक चार्ज ओनली अट्रैक्ट ईच अदर. सो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? सो दैट्स व्हाट इट इज शोइंग. Electrons are negatively charged, but we are not talking here about electrons, we are discussing about cathode rays. Okay, so cathode rays are negatively charged. This is the very first property of the electron, that cathode rays, that is negatively charged. Cathode rays are negatively charged. Now coming to the second property. Second property is rays always travels in a straight line. कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी. अब कैसे हम इस चीज पे बिलीव करें? तो उन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंट में एक ओपेक मटेरियल को प्लेस कर दिया बीच में, जो हमारा, मैं फिर से बना देता हूं, ये हमारा मतलब क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है. इधर हमने कैथोड को रखा था और हियर वी हैव प्लेस्ड मेड एनोड, और इधर से कैथोड रेज निकल रही थी. He have placed one opaque object. अब उन्होंने देखा जैसे ही रेज स्ट्राइक करी ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक यू ऑल नो कि समथिंग दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. सो व्हाट ही हैव ऑब्जर्व्ड दैट इट कास्ट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब शैडो फॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द रेज आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इस वजह से हम लोग वी हैव कंक्लूडेड दैट दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? Now the third property for the cathode rays, they possesses kinetic energy. अब इसके दो reasons हैं क्यों possess करती हैं kinetic energy. Because these are cathode rays are made up of particles. Yes, correct. और हम लोगों ने metals matter in our surroundings में पढ़ा ही है. क्या पढ़ा है बच्चा? कि particles possesses kinetic energy. Clear? अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे इस चीज को प्रूव किया? फिर से इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली. डिस्चार्ज ट्यूब में वही सब कैथोड, वही एनोड, और रेज निकल रही थी. ही हैव प्लेस्ड सम छोटे छोटे पेडल व्हील्स लगा दिए, जो हमारे मतलब साइकिल्स में पेडल्स होते हैं. मेरी ड्राइंग खराब है, देखो हंसना मत, है ना. तो इन्होंने देखा कि वो बहुत छोटे छोटे पेडल्स थे. जैसे ही रेज उनसे निकल रही थी पेडल्स स्टार्ट मूविंग. सो ही हैव कंक्लूडेड व्हाट, that they possesses the kinetic energy. Clear? Now अब particles की बनी है, then the size is very 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 small. The size of the particles or the size of the rays are very very small. Size is very small but not zero. Okay, so size is very small. Clear? So these are the certain properties. ठीक है. Now two most important properties that are they are deflected towards the electric field. इससे भी हम लोग नेचर को कंक्लूड करेंगे अभी. Deflected in इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. कैसे? इन्होंने अपने डिस्चार्ज ट्यूब फिर से लिया, ये डिस्चार्ज ट्यूब है इनका. अब इसमें ये कैथोड रेज इधर से निकल रही थी. ही हैव प्लेस्ड
इलेक्ट्रोड्स आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी बाहर, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल रखा, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल रखा. देन व्हाट ही हैव ऑब्जर्व, द रेज आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. तो एक तो डिफ्लेक्ट हुई रे, द सेकंड थिंग they are negatively charged, that's what they are attracting towards the positive charge. Clear? Now the next property is they also gets deflected in magnetic field. और ये आप लोग 10th क्लास में मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं बच्चा लोग कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, चार्ज कैरिंग कंडक्टर, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है. क्लियर है ना? सो दैट ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज एंड दीज आर इंपॉर्टेंट. अभी नाम नहीं आया था, ये डिस्कवरी जब हुई थी नाम तो इन्होंने नहीं दिया था, जे जे थॉमसन ने. जे जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, उनसे कुछ कंक्लूजन निकाले, एंड दैट कंक्लूजन आर अंडर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. These are under the properties of the electrons. I hope these properties and the experiment is quite clear to all of you, and I have going through with the basics only. Okay, so please make a note of it. Now coming forward with the J.J. Thomson experiment. अब J.J. Thomson ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों किया था भैया, क्या जरूरत थी? तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज नोन एज E/M रेशियो. इससे काफी सारे उन्होंने कंक्लूजन निकाले थे. E/M रेशियो मींस चार्ज बाय मास रेशियो इन्होंने निकाला था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कैथोड रेस का जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो क्या होगा. तो अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आई विल टेल यू द वैल्यू. हम लोग जो न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो जो वैल्यू आई इन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो की और ये एम बाई रेशियो की, दैट इज 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी. दैट इज द वैल्यू, approximate value of the charge by mass ratio. जो एक प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूं आपको, जो नेचर होता है कैथोड रेज आर टोटली इंडिपेंडेंट. अब कैसे? कैथोड रेज आर टोटली इंडिपेंडेंट, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई विल एक्सप्लेन यू हियर ओनली, राइट इट इन द प्रॉपर्टी ओनली. ठीक है, कैथोड रेज जो इंडिपेंडेंट कैसे होती हैं. नाउ कैथोड रेज के लिए देखो, ऐसा तो है नहीं ओनली दे हैव डन वन एक्सपेरिमेंट, नहीं, काफी चीजें ट्राई की गई होंगी. कई बार क्या हुआ होगा, गैस को चेंज किया. कई बार क्या हुआ होगा, कई बार उन्होंने इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को चेंज किया, कई बार और कुछ चेंज किया. बट व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड कि चाहे पोटेंशियल चेंज करें, चाहे हम गैस का नेचर चेंज कर दें, बट रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ओनली, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. सो फ्रॉम दैट कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन any nature of gas. You can make a note of it. Neither they depend on nature of gas, nor they are depending on the इलेक्ट्रोड मटेरियल को भी हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाट चार्ज बाय मास रेशियो. ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो में अगर हम लोग बात करें, सो व्हाई इट इज फिक्स्ड, क्यों रेज जो है कैथोड रेज दे आर इंडिपेंडेंट. इफ वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन, इफ वी विल टॉक अबाउट हीलियम, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम ओनली. क्लियर? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सेम. तो क्या चेंज होगा? नो, there will be no change in EM by ratio for cathode rays. Clear? Now one more experiment was there that is also very important, that is Millikan's. एक साइंटिस्ट थे हमारे Millikan's, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. he named it as Millikan's oil drop experiment. Millikan's oil drop experiment, क्या नाम रखा है ना? तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, अब हमारा क्यों किया गया एक्सपेरिमेंट? तो दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन
to calculate the actual value of charge on electron. Actual value, to find out the actual value for the charge of electron. कि हमारे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इसको फाइंड करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट इज डन बाय मिलिकॉन, एंड उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग गया, दैट इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्लियर? अब बात आती है कि व्हाट इज द मास। तो मास वी कैन कैलकुलेट नाउ बिकॉज वी हैव चार्ज बाय मास रेशियो। क्लियर? चार्ज बाय मास रेशियो है, चार्ज भी है फ्रॉम द मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज की वैल्यू भी आ गई, चार्ज बाय मास रेशियो वी आर हैविंग, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मास, so we can calculate by using this formula, and the mass of electron आपको पता होगा क्योंकि 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, but I have told you the concept. It is 9.1 into 10 to the power -31 kg. It is quite negligible, but particle is there, that's why it is existing. So these are the two experiments that was done by, one experiment was done by J.J. Thomson. He proved that the nature of the कैथोड रेज इज टोटली इंडिपेंडेंट, किसी भी चीज पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। और मिलिकन्स ने फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी, ही हैज कैलकुलेटेड द चार्ज, फिर हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इज आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए, सो दैट्स व्हाट इट इज द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन्स। So I hope the things are clear to you. If any doubt arises, you can comment me for your doubts, your query. I am really happy to help you out. Thank you so much. In the next lecture soon, by tomorrow, you will get the discovery of protons and some atomic models. And I'll try to make the videos lengthy so that at least you will give your 30-40 minutes to the lecture. Thank you so much. Have a meaningful day.